Government perks या private salary? We did internship for 450 rupees a month. Increasingly difficult होता जा रहा है. Number of people attempting the exam, entrance exam is too much. So this is a bad profession for making money. And if you are आराम पसंद, change your profession. खुद की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़े, गॉड फॉरबिड, तो किससे करवाओगे? Save your bones, otherwise it will just fall down like a house of cards. सर आपने भी एज ए रेजिडेंट 8 घंटे क्या 36 घंटे 24 घंटे ड्यूटीज़ करी होगी. Medicine is not a job for aggressive people. विमेन इन ऑर्थो, मतलब लड़कियों को ऑर्थो लेनी चाहिए. Because I have lost very few debates in my life. अब कुछ लोग जानना चाहते हैं, MBBS हो गई है, PG निकल नहीं रही है या देना नहीं चाहते हैं. This is an opportunity which will not come back. सर विमेन सेफ्टी एज अ रेजिडेंट. As men in the society, we have to look after the safety of the women in our society. माई डॉक्टर हैज़ एडवाइस सर्जरी ऑलरेडी. अब क्या करना है? Physician, unfortunately, this country has to compete with RMP, homeopath, allopath. वन एडवाइस टू अ पर्सन हु इज़ डूइंग MBBS. जब मैं ऑस्ट्रेलिया में फेलोशिप कर रहा था तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये था, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, पेशेंट इज ऑलवेज राइट. हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली डॉक्स, जहां वाइट कोट सिर्फ कहानी की शुरुआत है. आज हमारे साथ फिर से हैं बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, वर्ल्ड रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा सर के साथ हम ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बना चुके हैं. कुछ बातें उसमें रह गई थी जो आज इस इंटरव्यू में कवर करेंगे. जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर इज़ रिटायर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एम्स ऑर्थोपेडिक्स, चीफ ऑफ ट्रॉमा सेंटर ऑफ एम्स. सर मल्टीपल अवार्ड विनर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला हुआ है. ही हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, दिल्ली ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इतने सारे हैं. जितना सर का करियर है उतनी मेरी उम्र नहीं है. तो वेलकम प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा अगेन. थैंक यू सर फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो सर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, काफ़ी बातें होगी. अब फटाफट राउंड्स ले लेते हैं. सो आई कॉल दिस रैपिड राउंड्स. सो यू हैव टू आंसर इन वन वर्ड और मैक्सिमम वन सेंटेंस स्पॉन्टेनियसली. इफ नॉट डॉक्टर देन व्हाट? लॉयर. वाओ. इफ नॉट इंडिया देन वेयर? ऑस्ट्रेलिया. इफ नॉट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड देन व्हाट बट अ डॉक्टर? That's a difficult one. Can't think of a life without a pediatrician. Oh, that's. I had love for children when I joined medicine. खुद की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़े, गॉड फॉरबिड, तो किससे करवाओगे? आपसे. थैंक यू सर. If I can ask an ordinary patient to go and get operated by you, what is justification for not getting it done by you? You are not less than the best. थैंक यू सर, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट. गवर्नमेंट पर्क्स या प्राइवेट सैलरी? There is no comparison. Perks are perks, but perks in government job come in many forms. But the salary, the private salary can buy all those. So maybe a middle path, work reasonably in a government job. That's a mistake I made for my own personal ambitions. But I think best thing is work till about 50 or so, or 45 in government. And then move on to private sector, so that you give room to new people in government, and then the people in private can benefit from your experience. Music during surgery or silence? Always music. Which songs? 70s or religious or bhajan. In fact, I ask patient, and you know that I ask if the patient has a particular preference. If they like songs from 70s and 80s, that's what it is. But many times it's very soothing music, which should not be loud, and something which is which is comforting to the patient. I feel also music has got great analgesic effect and soothing effect. I think for patient who's under spinal anesthesia, as most of our patients are, I think music in the theater, as they tell me, is very soothing for them, and it also shows to them that the surgeon is not nervous. Right. One myth about orthopedic surgeons? That they are bullies
and they are bodybuilders. I had Dr. Dave and Dr. Kotwal as my mentors. Like they were, so they don't have to be big muscular hunks. Right. One truth about surgeons. They overrate their abilities. Yeah. Yes. And then they have an ego which is larger than life. Right. Can a surgeon and anesthetist be good friends? Of course, my younger sister is an anesthetist and we are the best friends. And Dr. And we Anjan have Trika? operated together, and Yeah. Dr. Chandralekha. And then I had to operate her knee, and she wouldn't get it done by anybody else when she needed knee replacement. Right. What's the funniest thing a patient has said to you right before surgery? डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा. I remember you saying this once. आपका पहली बार है, मेरा तो नहीं है. But seriously, patients do say funny things, and but nothing as funny as it was said that a person who was being taken for a cardiac surgery, and this was not funny at all. Cardiac surgery, and he told the cardiothoracic surgeon who was his son-in-law. He said, "Remember, my son." He was his son-in-law. If something happens to me, your mother-in-law will come and stay with you. Nice. If you could switch lives with anyone for a day, who would it be and why? So if I could switch my life with one day, is somebody I know who's a physician to Dalai Lama. Oh, wow. So I would switch a day of life with him. What's your guilty pleasure when it comes to food or TV shows? So sweets are, I often tell people have a sweet tooth, I have a sweet jaw. So anything sweet, I'll just, of course, when we went to Australia for my bone banking fellowship, I was so disappointed because in India, in every region, we have our special sweets. Every region, the Rajasthan has its special sweets, Bengal, everywhere, Punjab. But they only had cheesecakes and fruits and chocolates, nothing Right. else. So I said, what country is this? They don't have enough desserts. Yeah. Favorite TV show? My favorite TV show was Suits. Oh, nice. Suits, And Suits, maybe that's why a lawyer? Yeah, I think that is where it connects. No, lawyer, because I have lost very few debates in my life, Yeah. particularly Hindi debates, very, very seldom. So I think I make it, I enjoy countering arguments and counter arguments. That kind of thing would have worked very well for me in law. अगर आपकी लाइफ पे मूवी बनेगी तो who would be the lead actor? Who would play you? Who would play me of the current generation? Yes. Or maybe any generation. So any generation, I would have liked Devanand to play my role. And current generation? Current generation, still I think I would go for Akshay Kumar. Oh, nice. If you had to give up surgery for 1 year, what would you do in that 1 year? I would go to, literally some hill station, some place in the hills, and just read a lot of books, meditate, and as has been my dream, do some gardening and treat the local people in the evening for 1 hour. Wow. Such a lovely way, sir. So rapid rounds is over. Now, sir, as a mentor, do you miss teaching students? No, I have never stopped teaching. I still teach. Yeah. So I mean, if you want like MBBS students and MS students, yes, of course. But then, if you are fond of teaching, you can teach the nurse in the theater. You can you can teach even an orderly about how to. In fact, that is really not a problem here. Fortunately, the staff in Apollo are so well trained that they can teach us a thing or two. But by and large, teaching about the things I know more about than them, anybody can be your student. So I don't. In fact, even now, you would have seen the way I used to do in AIMS. The best time of the day for me is discussing next day's cases, putting up X-rays on the view box, asking everybody's opinion, what will you do?
And I used to tell them, you convince me, you make a plan, you convince me. If your plan is better than mine, I'll change my plan, because it's not about my ego, it's about what is best for the patient. And you can have a suggestion which I might have overlooked. But then it actually teaches your students to have an open mind. See, the whole thing is, there's no room for ego. There's no room for being not receptive. You have to be open. In fact, people who teach you most are your critics and your betas, because that's how it works. You get better and better without realizing. I don't get offended by a negative remark, because if it is true, I should not get upset, because then I need to improve that. And if it is not correct, then where is the need to get upset about it? Right. But you can learn most from the comments of your critics, because if you are surrounded by people who will clap at everything you do or say, you are possibly being surrounded by wrong persons. I've had so many people from army, and they have all been very good. Normally very courteous, because that's what the army teaches them, that you should be very courteous to the seniors. But when Colonel Satish came, he became my most favorite student, because he would be very blunt. He said, sir, no, you're doing this wrong. I said, okay, tell me how it is wrong. So we would have an argument, and if his argument is stronger, I would say, fine, tomorrow we'll do it your way. But you see, it's not about my ego. It's about, no, I always say my ego is about giving the best I can do to my patient, give to my patient. And to That's students. my ego. And for that, there is no ego to the rest of the world. सर आपने भी एज ए रेजिडेंट 8 घंटे क्या 36 घंटे 24 घंटे ड्यूटीज़ करी होगी. डू यू से टू योर स्टूडेंट्स जो अब हु वांट लेस आवर्स ड्यूटी कि हमने तो इतनी करी है, आर यू दैट काइंड, या डू यू वांट अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस फॉर योर स्टूडेंट्स? So, I'll give you a small example. When in 1979 I joined AIMS, there were only 2 cars in the hostel. One belonged to our hostel warden, Dr. Okay. Brian De Monte, who was an assistant professor in biochemistry. And the second one belonged to Jasveer Khurana, whose mother was number 1 or 2 topmost radiologists in the country in Defense Colony. And now, if you go there, the number of there's cars no is equal to parking. the number of rooms there. Yeah. There used to be no air conditioners in the rooms. Now every room has air conditioner, every room has refrigerator. I'm not saying it's bad. What I'm saying is the times have changed. So for us, the fire was about proving something. So we would put the personal comfort and luxuries, not that we could afford it. That was another thing. We couldn't afford many luxuries, but today children get paid. We did internship for 450 rupees a month, and house job in 1200 rupees, and residency was 1800 rupees a month. So now the children want to have quality of life. So that is good. There's nothing, and I would like them to have work-life balance. Definitely not an issue. When I went to USA for the first time in the year 2004 in the Orthopedic Trauma Association, there was this talk by Campbell, who's written that book on orthopedics. And he said how, like I'm telling you, almost 20 years back, how the orthopedic training is suffering because the residents want to work a fixed number of hours. You see, you are trained your training is going to be 3 years for the residency for the degree, and then 3 years for the senior residency. And you must realize that you can't see every case in 6 years. So there'll be many things you'll encounter for the first time in your life after your training is over. So by spending more and more time in your profession, in your early hours, like you see, we used to have the first 25 years as brahmacharya, and the students used to live in Gurukul, which means their entire 24 hours were dedicated to learning. Right. You can't that legally or even ethically or socially tell that to the students now. But then we have a culture where for the first 25 years, there was nothing about, dating. There was nothing about socializing. That was only the life was dedicated entirely to learning.
And if you look at this in medicine, it actually stretches much beyond, because by Yes. the time you finish your senior residencies, when your training, formal training is over, Complete, right. because I don't think finishing MS is anything. And you are maybe close to 30 or 29 by that time, and most people would not like to get married without a stable job. So that's when they start looking for a job after finishing senior residency. But then everywhere, that's what Dr. Campbell said, that now with the limited number of hours or the stipulated number of hours in a week, the students the training is suffering, so they'll have to go for more of self-help. But the thing about surgical specialties is that you can't be assisting in a surgery which was supposed to last for 1 hour and has gone on to 4 hours. You can't say, I'm going now because my 48 hours for this week are over. Sir, I have had such residents, and I'm sure you must have had them too. Yeah, but Yes, then that's but then it's your own learning. So that's right. again something, because you see, you have to strike a balance between your work life balance and the patient interest and patient safety. So you can't just say, I'm going now, my time is over. It's not an office where you just clock your this thing and biometric and walk out. You are dealing with patients who may need you a bit longer for you to streamline. And we have thing called giving over, which may last for an hour, telling them all about patients to the next guy. Sir, यही similar tangent पे, if a resident, surgical resident, has a fight with his mentor for whatever reason, maybe the hours or anything, do you think उसका career over है in Indian scenario? मैं ये समझता हूँ, जो आप कह रहे हो वो शायद ठीक है, इंडियन सिनेरियो में ऐसा ही होता है, पर जो मेरा अपना पर्सनल सोचना है वो ये है कि दो बातें इसमें हैं. एक तो जो रियल टीचर है वो कभी भी इट ही विल नॉट विक्टिमाइज और क्रूसीफाई हिज स्टूडेंट. मतलब पनिशमेंट, it is an abuse of power. Right. Anytime you harm somebody by your power is an abuse of power. Harming is different. Deterrent action I mentioned. मैंने कहा deterrent होना चाहिए. उसने कुछ गलती की है, deterrent action होना चाहिए. लड़ाई अगर उसने की है, और ये I obviously feel कि अगर मेरी गलती नहीं है और उसने लड़ाई की है और वो गलत है, तो I would either counsel him or talk to his friends and tell them to counsel, or talk to his parents and at least tell them how it is. But if it still doesn't work, I'll hand him over to another consultant. Harming somebody just because you are in a position to do so, or just because you don't like his face or you don't like his mannerism or body language, is not correct. You can firmly tell him. And I say the same thing about medicine. मैं रेजिडेंट्स को भी बोलता था, अभी भी बोलता हूँ, अगर कोई पेशेंट पेटेंटली रॉन्ग है और आपसे एग्रेसिव हो रहा है, आप भी एग्रेसिव हो जाते हो, तो आखिर में जब लड़ाई होगी ना, तो जैसे साइकिल और कार वाले की टक्कर में होता है, लोग कहेंगे कि ये कार वाला ही गलत है, तो वो कहेंगे कि अच्छा ये तो बेचारा पेशेंट है, ये तो अपसेट है, इसको तो तकलीफ है, आप तो डॉक्टर, आपको समझ होनी चाहिए. तो जब आपको तब भी जाके उसमें नहीं है, तो वाई गेट एग्रेसिव. सो हमेशा से रेजिडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप कभी भी एस्केलेट मत करो, आप प्यार से उनको बताओ, और अगर उनको बात समझ में नहीं आ रही तो उनको बोलो आप मेरे सीनियर से बात करो. आप सीनियर मोस्ट नहीं हो सिस्टम में, आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर उसको समझा सकते हो समझाओ, नहीं समझा सकते तो आप बोलो आप मेरे सीनियर से बात कर लो. दिस इज़ वॉट इज़ डन इन हॉस्पिटैलिटी, in airline, in hotel industry. This is what is done. Imagine one thing. Customer is always right, patient is always right. Patient is being unreasonable, you can't handle, let somebody else do it. You don't have to fight all the battles yourself. Sir, what is a fellowship? So I think fellowship is an opportunity to really enhance your professional character, if you like, stature or professional competence. कुछ चीज़ें होती हैं मेंटरशिप से होती है, जैसे सर्जिकल स्पेशलिटीज़ में मेंटरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. मेडिकल फील्ड में मैं तो एम्स का पढ़ा हुआ हूँ,
मैंने कई अपने सीनियर्स को देखा जो HOD को ही मेडिसिन पढ़ा देते थे, क्योंकि वो पूरी हैरिसन उनको रटी होती थी, तो MD मेडिसिन करने गए और HOD को ही बता देते थे कि सर आप ये मेडिसिन दे रहे हो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया। तो आई सॉ वन ऑफ माई 1 year सीनियर पर्सन टेल HOD कि सर आप ये एंटीमोनियल दे रहे हैं काला आजार के लिए, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, इसका साइड इफेक्ट होता है, विच दी HOD हैड मिस्ड। नाउ अगर वो HOD ऑफेंड हो जाए और कहे कि इसने मेरे को इंसल्ट किया है, तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग, दैट्स व्हाट यू सेड, यू कांट टेक इट आउट फॉर योर ओन इनकॉम्पिटेंस। अच्छा, ज़्यादा जितना कॉम्पिटेंट आदमी होगा उतना वो कम ऑफेंस लेगा, हम्बल होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादातर इनकॉम्पिटेंट लोग ही जब पावर में पहुंच जाते हैं वही अपने स्टूडेंट को भी हार्म करते हैं, या वही पेशेंट के लिए कई बार विंडिक्टिव भी हो सकते हैं, पेशेंट तक के लिए रिलेटिव से एग्रेसिव हो सकते हैं। मेडिसिन इज़ नॉट ए जॉब फॉर एग्रेसिव पीपल, you cannot be aggressive, you can be only aggressive about learning, working hard, but not in your behavior. सर अब ये फेलोशिप वाले क्वेश्चन पे वापस आते तो हैं। फेलोशिप पे वापस इसलिए आते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि जैसे आप गए जर्मनी या एक तो मैंने ये देखा है कि जब आप अपने सेंटर से दूसरे सेंटर में कहीं जाते हो, एक आप पहले तो आप जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी टेंडेंसी होती है सब कुछ वैसे ही सीखने की, कुएं के मेंढक की तरह, कि आपको ये लगता है यही बेस्ट है। एक तो आप जब दूसरी जगह जाते हो, यू लर्न देयर अदर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, दैट्स नंबर 1। तो हमने भी विज़िट किया J&J फेलोशिप में, सारे इंडिया के सेंटर्स को विज़िट किया, और वो आप सीनियर लेवल पे भी कर सकते हैं कि आपको ये पता लग जाएगा कि जो आप कर रहे हो वो आप दूसरे लोग भी ऐसे कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हो, इट एक्चुअली गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस। बट दूसरे सेंटर्स में जाना चाहिए, पर मुझे लगता है एक कम से कम फेलोशिप फॉरेन में ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आपको पेशेंट से बात करने का तरीका, कर्टसी, हमारे यहाँ कई बार ये चीज़ें इतनी अच्छे से सिखाई नहीं जाती हैं कि सर्दी है तो दोनों हाथ को पहले ऐसे करके तब पेशेंट को हाथ लगाओ कि पेशेंट को हाथ ठंडा लगेगा, या पेशेंट को बताओ कि मुझे आपको एग्जामिन करना है और आपको कहाँ कंसेंट लो, और हर तरह का एटीट्यूड, मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग, इतनी सारी चीज़ें हैं जो किताबों में नहीं लिखी होती है। तो एक डिफरेंट सोसाइटी में जब आप जाके देखते हो तो आपको ये पता लगता है कि जो आप जब वापस आते हो वहाँ से, तो आपका एक तरीका ही चेंज हो। जैसे कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया 98 में, तो वहाँ कार चलाते थे तो सीट बेल्ट थी, तो वापस आके हमने सीट बेल्ट पहनना नहीं छोड़ा। हालांकि इंडिया में सीट बेल्ट 99 में कंपलसरी नहीं थी जब हम वापस आए। तो आप ऐसी चीज़ें पिक करते हो, और फिर आपकी देखा देखी और लोग भी ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं और कर सकते हैं। यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। आपको अगर आप गए और आपने कुछ सीखा नहीं, तो फिर तो वो वेस्ट ही हो गया, आपका समय भी और पैसा भी सब बर्बाद हो गया। तो फेलोशिप है, एक तो रियली में फेलोशिप है, आपके कांटेक्ट बनते हैं, आप उनसे जॉइंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, जॉइंट रिसर्च कर सकते हो, आप सीखते हो, आपके कनेक्ट हो जाते हैं। कभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी पेशेंट के लिए क्या करना है, आप अपने मेंटोर को भेज सकते हो एक्सरे के, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। नेवर हेजिटेट टू सीक हेल्प, कभी भी हेजिटेट नहीं करें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। और फेलोशिप हेल्प्स यू डू दैट। तो फेलोशिप आपकी कैरेक्टर को, आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी प्रोफेशनल जो भी एक्यूमेन है, सब चीज़ों को इम्प्रूव करती है, और मुझे लगता है ये बेस्ट है। फॉरेन में आजकल ये है कि जैसे आपने MBBS कर ली तो आप जनरल डॉक्टर हो, फिर आपने MS कर ली तो आप जनरल MS हो, उसके बाद एक कैरेक्टर हो गया कि आपको, उसके बाद एक ट्रेंड है कि आपको स्पाइन करनी है, तो स्पाइन में फेलोशिप करके अलग से स्पाइन में ट्रेनिंग लेनी है। इसी तरह, और दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड ओवरसीज़। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में फेलोशिप कर रहा था तो मेरा ऑब्जर्वेशन आज से मतलब 26 साल पहले ये था कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो मेडिसिन है उसकी ब्रेड्थ बहुत है। हमारे यहाँ पे विटामिन D डेफिशिएंसी और स्कर्वी से लेके और बोन कैंसर से लेके रिवीजन, हिप एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट तक का काम होता है। तो आप OPD में बैठे हो तो आपको बच्चा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का भी मिलेगा, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम नहीं है। आपको TB मिलेगी, आपको लेप्रेसी मिलेगी, आपको नर्व इंजरी मिलेंगी, आपको इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, रेयर प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी। तो हमारे यहाँ ब्रेड्थ है, उनके यहाँ डेप्थ है। मतलब उनको एक अगर नी रिप्लेसमेंट सीखना है तो नी रिप्लेसमेंट की इतनी डिटेल
में वो सीखेंगे कि वो उसका पॉलीथिलीन कितना फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर एक साल में वियर करता है, उसकी सर्वाइवरशिप क्या है, ये डिज़ाइन किसने बनाया था, ये डिज़ाइन किसने बनाया था, उनके बीच में फ़र्क क्या था। तो वो डेप्थ है। तो आपको यू गेट दी बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। आपकी ट्रेनिंग यहाँ हुई और फिर स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन वहाँ हुई, तो भी एक तरीका है कि आप यू कैन रियली इमर्ज ऑन द टॉप। राइट। एक चीज़ सर मैं पूछना चाहूँगा, वापस से एमबीबीएस और रेजिडेंसी की तरफ आते हैं। इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, नंबर ऑफ पीपल अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ टू मच। अब कुछ लोग जानना चाहते हैं, एमबीबीएस हो गई है, पीजी निकल नहीं रही है या देना नहीं चाहते हैं, तो और ऑप्शंस भी कंसिडर करने चाहिए, या आपका क्या ओपिनियन है सर इसके बारे में? सो या बाहर जाना चाहिए, सॉरी टू बिल्कुल, इंटरप्ट, इंडिया से बाहर जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक्चुअली इसमें तो आपका ना पर्सनल क्या प्रेफरेंस है। मैं तो कई बार बच्चों से पहले ये पूछता हूँ कि अच्छा तुम अगर एमएस भी कर रहे हो तो तुमको अल्टीमेटली प्रैक्टिस में जाना है कि टीचिंग में जाना है, तुमको क्या करना है उसके बाद उस पर ही डिपेंड करता है। अगर आपको पीजी नहीं मिल रही है और आपके पास इतने रिसोर्सेज है कि आप बाहर जा सकते हो, तो बाहर जाना एक अच्छी ऑप्शन है। आप लैब पास करके यूके जा सकते हो, आप कहीं भी। इनफैक्ट अगर आपको यूएसए भी जाना है तो बेस्ट टाइम जाने का तो एमबीबीएस के बाद ही है। क्योंकि आपको फिर नहीं तो जाके अपनी पसंद की स्पेशलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि कई बार ये भी एक बच्चों के सामने डिलेमा आता है कि आपने सोचा मैं ऑर्थोपेडिक्स कर रहा हूँ और आपको करनी है, ऑर्थोपेडिक्स नहीं मिल रही है, तो आप कीप योर ऑप्शंस ओपन ऑलवेज। जैसे हम सर्जरी में कहते हैं हैव प्लान बी, प्लान सी, क्योंकि ना यू डोंट नो व्हाट नेचर हैज़ फॉर यू। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहते हो ज़िंदगी में सबसे अच्छा आपके लिए वही है। ये तो सिर्फ कुदरत को मालूम है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो अगर आपको इफ़ यू डोंट गेट व्हाट यू लाइक, यू मस्ट लाइक व्हाट यू गेट। कि और दूसरा, हमारे सीनियर्स अब तो आउटडेटेड हो सकता हो गए प्रिंसिपल, लेकिन हमारे सीनियर से बोलते थे कि किसी बहुत ही लो लेवल कॉलेज से बड़ी अच्छी स्पेशलिटी करने के बजाय किसी बहुत अच्छे कॉलेज से थोड़ा मतलब इवन प्री पैरा क्लिनिकल करने में भी कोई बुराई नहीं है। इसी ट्रेनिंग विच मैटर्स। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी काम करो, यू मस्ट एक्सेल इन दैट, यू मस्ट बी बेस्ट। अगर आपको जूता रिपेयर करने का काम आपने शुरू कर दिया तो आप इतना अच्छा रिपेयर करो कि हर आदमी बोले कि यार वो वाला जो है ना जूते वाला, मुझे जूता तो उसी से ही रिपेयर कराना है, क्योंकि उसके जैसा जूता कोई रिपेयर नहीं करता। तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट एट वॉट एवर यू डू। ये तो बहुत ही आजकल मुश्किल हो गया है बच्चों के लिए कि जो वो करना चाहते हैं उसी में उनको मिल भी जाए और कॉलेज भी अच्छा मिल जाए। और बात ये होती है कि कौन सी सीट उठाई, किस स्पेशलिटी में उठाई, तो उसमें आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके पेरेंट्स के पास फंड कितने हैं, आप अपना मनपसंद, आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बनना है और आपके पेरेंट्स, आपको मेरिट से एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते फीस करना, तो चेज दैट। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स के पास मींस नहीं है और आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल रही है, आपको ऑर्थोपेडिक्स नहीं मिल रही है, आपको कुछ माइनर सर्जिकल स्पेशलिटी मिल रही है, आप ले लो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे there is going to be a patient in front of you who will expect you to cure him, and you have to be the best person available to him. That's how you have to because ज़िंदगी में हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं होती है और आपको ये हमेशा सोचना है कि आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है। आप डॉक्टर बन गए तो अब ठीक है, कई लोग डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद में वो MBA कर लेते हैं, वो IAS में चले जाते हैं। तो अगर आप डॉक्टरी परस्यू करने के बारे में सीरियस नहीं हो तो MBBS के बाद ही निकल लो। बट हालांकि कई लोग ये करते हैं कि MD फार्माकोलॉजी करके और किसी ड्रग कंपनी में मेडिकल डायरेक्टर बन गए या रिसर्च के इंचार्ज बन गए। इट इज़ सो इंडिविजुअल, यू नो, बट the life is all about choices we make. No option is a bad option. No option is a bad option. Keep your options open and see किधर आप
ऑफ द टू सिचुएशंस हमेशा इट इज़ अबाउट द रोड नॉट टेकन, बट यू हैव टू चूज एंड योर लाइफ इज़ नथिंग बट आउटकम ऑफ योर चॉइसेस. तो अगर आपने अगर अपनी चॉइसेस जो अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वाइजली सोच समझ के की हैं, यू शुड नेवर रिग्रेट देम. सर बाहर से कोई रेजिडेंसी करके आता है तो कौन सी कंट्रीज आपकी नज़र में लगेगा कि हाँ दिस ट्रेनिंग मस्ट हैव बीन गुड इनफ फॉर माय कंट्री पेशेंट्स? So if you ask me, the kind of training opportunities which are in India are unparalleled. इतनी बड़ी पॉपुलेशन है Right. और इतनी अगर कोई मेहनत करना चाहे तो इतना है सीखने को, इतना है सीखने को, पर यह मेहनत लगती है. बाहर से ट्रेनिंग करके आने वालों में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं है. चाइना में लैंग्वेज प्रॉब्लम है और बहुत सारा वो ज़्यादातर जो बाहर ट्रेनिंग होती है क्योंकि वो एक तरह से बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है, यू नो. बट फिर भी अगर मुझे चॉइस लेनी होगी तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी गुड. Okay. दी अमेरिका से तो कोई वापस आता क्यों नहीं ही है. आएगा. ब्रिटिश में MBBS करके लोग जाके और वहाँ पे रेजिडेंसी करके दे फाइनली मूव बैक टू इंडिया. तो ब्रिटिश ट्रेनिंग इज़ रीजनेबली गुड. हम तो ब्रिटिश आइडेंटिफाई हो ही जाते हैं क्योंकि इतने साल उन्होंने हमारे पे राज किया, तो हमारे अभी रहन सहन, गाड़ी चलाना, रोड की उस साइड पे सब कुछ ब्रिटिश ही चलता है. इवन अभी थोड़ी देर पहले तक सारा लॉ भी वैसा ही British law इन्फ्लुएंस भी थी, था. right. पर मुझे लगता है कि अगर एक कंट्री आप पूछें तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया फिर भी एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ से आप ट्रेनिंग कर सकते हो. पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रेनिंग करके बच्चे वापस आके इंडिया में सेटल होने में इंटरेस्टेड होंगे. विमेन इन ऑर्थो, मतलब लड़कियों को ऑर्थो लेनी चाहिए? अब बिल्कुल ले रही हैं. अगर जैसे वो बात है कि मैंने कहा आपसे कि वो अब मिथ है कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन 6 फुट का होना चाहिए और जिम में जाके और मसल्स अपने बाइसेप्स बनाने वाला होना चाहिए. एंड हालांकि मैंने ये देखा है कि द विमेन इन ऑर्थोपेडिक्स गो मोर फॉर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक एंड हैंड सर्जरी, जो थोड़ा सा Finer हाँ branches. फाइनर थिंग्स, because they are more meticulous also actually and more hardworking and more painstaking. But there are ladies in spine surgeries now and joint replacement surgery. So I'll not say that there is any branch of super specialization or subspecialty in orthopedics which is a barrier to women. So yes, it is becoming popular, and I think we'll see far more females in orthopedics in coming years. सर विमेन सेफ्टी एज अ रेजिडेंट, इस पे आपका क्या कमेंट है या आप कुछ? That is something which really worries me. In fact, women's safety in our society itself is somewhat of a concern. When I was the chief of trauma center, even the nurses जो ट्रॉमा सेंटर से ड्यूटी करके बस स्टॉप पे जाती थी, सर्विस लेन में उनके पर्स और चेन स्नैचिंग हो जाते थे विंटर्स में खास करके कि अच्छा. 8 बजे ड्यूटी ख़त्म हुई तो आई हैड टू टेक इट अप विद द DCP साउथ. और मैंने कहा कि आप जो है ये इस पे एक PCR वैन सर्विस लेन में रखवाइए. एक वहाँ पे बहुत अनऑथोराइज झुग्गी झोपड़ी वाला था कॉम्प्लेक्स Yes, फैक्ट्री yes, रोड yes. पे, जिससे कि ड्रग पेडलिंग और ये सब क्राइम और छुरेबाजी ये सब होता था. उनको हायर अथॉरिटी से बात करके हटवाया. तो एक तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की है, ना कि हॉस्पिटल के प्रेमिसेस के अंदर सिर्फ. आफ्टर ऑल अगर वो लड़की ड्यूटी करने आई है तो अपने घर से निकली है और जब घर वापस पहुंचती है तब तक किसी ना किसी फॉर्म में वी आर अकाउंटेबल. तो कम से कम वो घर सेफली पहुंच जाए प्लेस ऑफ वर्क से. सो बहुत बार ये पॉसिबल नहीं होता. बहुत बार अपने कलीग्स ही थ्रेट बन जाते हैं. तो इसमें जो अभी दिल्ली पुलिस का इनिशिएटिव हुआ है और जब इनिशिएटिव बहुत से चल रहे हैं, मुझे लगता है पहली बात तो यह है कि बच्चों को खुद अपनी सेफ्टी में एक्सपर्ट होना चाहिए. दे शुड बी ट्रेन्ड इन सेल्फ डिफेंस, कंप्लीट विद पेपर स्प्रे. एंड फिर भी जैसा हमारा सोसाइटी है, ट्राई करें कि अकेले
नहीं जाए, पर आपने देखा अभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि आर्मी ऑफिसर्स भी थे और वो दो चार लोग इकट्ठे थे, और वो तो कहीं ना कहीं सिस्टेमिक लेवल पे मुझे लगता है कि जब तक हम अपने लड़कों को नहीं सिखाना शुरू करेंगे टू रिस्पेक्ट विमेन, हमारी सोसाइटी में जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, ये रिस्क तो रहेगा। और बच्चियां हमारी जब जाके नौकरी करती है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाती है या इवन डॉक्टर बन के ड्यूटी रूम में करती हैं, तो आई कैन टेल यू माई डॉटर हैज़ डन हर MBBS एंड MD एंड वर्कड इन कोविड। पेरेंट्स ऑलवेज रिमेन वेरी वरिड। तो जो भी आप उनके एज पेरेंट्स उनकी सेफ्टी के लिए कर सकते करें, लेकिन वर्क प्लेस एनवायरनमेंट तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है। लेकिन जो हम कर सकते हैं कि उनको वी शुड टीच देम टू पिक अप द रेड फ्लैग्स and beware of people who don't, and I still feel कि बच्चियों में ये एक नैक होता है, एक सिक्स सेंस होती है, they can pick up, but if you have any threatening behavior, you must bring it to the notice of the concerned authorities immediately. Don't be scared. पर वही होता है कि कई बार वो लाते हैं तो उन पे रिप्रिजल हो जाता है कि ये हो जाता है। तो इट इज़ रियली अ वेरी बिग चैलेंज, workplace safety, and particularly when they are in hospitals and serving the needy. I think it has to be a responsibility of administration with adequate number of cameras, adequate posters, saying now when there were a few incidents of some attacks on women in cabs, most of the cabs started writing this cab respects female safety, just reiterating this message, reinforcing this message for passerbys who are reading this, कि as men in the society we have to look after the safety of the women in our society. Sir, now some questions for the patients. How to find a good doctor? Age above 40, bald and fat? Yeah, how to find? I have a problem as a patient. How do I go about and find a doctor? If I open up Google, hundreds of doctors have their advertisements. Yeah, but I think there are two or three things which are very important. Somebody asked me किससे ऑपरेट कराना चाहिए, यंग सर्जन से कि ओल्ड सर्जन से. तो आई सेड इफ योर डॉटर हैज़ टू गो आउट ऑफ स्टेशन in a car, would you like to give it to a young driver who will take you there in 2 hours, or a experienced person, mature person who will take her there in 3 hours? Or you yourself, would you like to be driven by a young driver or an experienced driver? There is actually room for both, but the things are different between physician and surgeon. Physician, unfortunately, this country has to compete with RMP, homeopath, allopath, compete in the sense that the patient has a choice that he can go to anyone. He can go even to an RMP in a remote village area who may not even be a qualified registered medical practitioner. He may just be a compounder and may have been like Quack. this. But a physician, the choices with the patient are many, and he can easily switch physician. पसंद नहीं आया, दवाई काम नहीं करी, चेंज कर लो. तो it is more difficult question about a surgeon. So I think about a surgeon, I'm really surprised. It never happened in AIIMS, but when I have come to Apollo, I am surprised कितने पेशेंट आके बोलते हैं कि हमने आपका बहुत बैकग्राउंड रिसर्च किया है. तो पेशेंट्स आर स्मार्ट, दे आर टेक सेवी, दे आर दिस थिंग, बट स्टिल they should not fall for Google rating, which can be manipulated. Exactly. And things. So I think one very good way is by example. Like, if somebody in your neighborhood had got surgery done by a particular surgeon, or your relative got a surgery done, ask how their experience was. First-hand recommendation. First-hand recommendation is one way. The second thing is that by and large you can still look at the profile and training. But the third thing is that which very often happens,
outside the consultation chambers, the patient exchange Yeah. notes. So that is actually the real. So if you want to know how good a surgeon is, who do you ask? You always ask the anesthetist. Because the Yes. anesthetist will tell you how good or bad a surgeon is, because he knows whether that when the things are going south, whether he keeps his cool or not, how he handles his complications, how cool he is, how efficient he is in this. So that is one way for you. If you are a doctor and looking for a good surgeon, ask the anesthetist. But if you are a patient, I think it is still by, sort of recommendation of a person who has got operated by this. That is one good way. You can do a background profile check. And finally, a lot of patients do that when they are waiting outside, ask how their experience has been. So another question. My doctor has advised surgery already. अब क्या करना है? What to do now? Should I take a second opinion? Should I discuss with my family what to do? So I think the doctor-patient relationship is really based on trust, and I always say that you choose your doctor, and once you have chosen your doctor, then follow his advice. But having said that, I don't fault a person अगर वो जाके एक और ओपिनियन लेना चाहता है. कई बार मैं पेशेंट को खुद ही बोल देता हूँ कि आप चाहे तो आप एक और ओपिनियन ले सकते हैं. There's no problem because but I have often said that after coming in practice, I said I come from a place where I was for 44 years, and if I told a patient you need surgery, that was the last word, because generally in this country patient thinks कि government वाला doctor ठीक बताएगा, गलत private. surgery नहीं बताएगा. I said कि now I am in practice, so I am expected to justify, but I would still request you that I am not given to justifying surgery. I think you need it, but if you don't feel that this is correct advice, you can take another opinion. सर ये गोल्ड इम्प्लांट्स के बारे में बहुत बातें हो रही हैं. So What is your whether opinion? it is gold implant or black implant, they are obviously not gold. दो चीज़ों के लिए उनकी यूटिलिटी होती है. एक तो वो उनका वियर कम होता है, मतलब घिसते कम है, उसकी मल्टीपल लेयर्स जो है उससे वियर कम होता है. और दूसरा जो है, कुछ एक पेशेंट जिनको आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी होती है, वो लोग को कई बार हम रिकमेंड करते हैं कि आप नॉन एलर्जेनिक है, हाइपो एलर्जेनिक इम्प्लांट यूज़ कर लें. लेकिन ये याद रहे कि जो गोल्ड के इम्प्लांट भी है जो एलर्जी के लिए यूज़ होते हैं, अगर उनमें नीचे एक्सटेंशन रॉड लगनी है तो वो ऑर्डिनरी कोबाल्ट क्रोमियम या टाइटेनियम की ही होती है, वो गोल्ड में नहीं आती है. इस बात का ध्यान रखें. वही बात है, चूज़ योर डॉक्टर एंड लेट योर डॉक्टर डिसाइड अबाउट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू. आई थिंक हमारे सिस्टम में अभी भी वेस्टर्न तरीके से लिटिगेशन, डिस्ट्रस्ट सब हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है हैप्पीएस्ट डॉक्टर पेशेंट combination or DO is when the patient trusts doctor completely, doctor lives up to that trust and gives a good result, and both of them are very happy at the end of it. सर एक चीज़ और, एम्स में आप इतने टॉप पोजीशन पे थे. अ पेशेंट नोज योर नेम, नाउ वांट्स टू रीच यू इन एम्स. आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट. या कोई भी बड़ा डॉक्टर ऑफ एम्स यही बोलते हैं, इट इज़ सो डिफिकल्ट टू रीच द टॉप डॉक्टर ऑफ एम्स. सो हाउ अप्रोचेबल वर यू एंड हाउ approachable you are now? So we had one of our teachers in my very first year. He's no more, but he was a very high profile Padam Bhushan, Padam Shri recipient, and he would see only 5 patients in the OPD. This was my very first clinical day in AIMS. और कोई पेशेंट आया और उन्होंने कहा आप मुझे देख लो, तो उन्होंने कहा कि मैं भारत के राष्ट्रपति को भी बिना अपॉइंटमेंट के नहीं देखता हूँ. सो दैट वाज वन प्रोफाइल ऑफ द डॉक्टर्स विच वी सॉ. टू मी, आई वुड जस्ट सी एनीबडी इवन इफ ही डजंट हैव अ रजिस्ट्रेशन, ही सेज मैं आया हूँ दिखाने के लिए, रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया, आप देख सकते हो. तो उसको देख के बोला कि अच्छा तुम अगली बार आके रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना, बिकॉज दे आर टू टोटली डिफरेंट थिंग. यू कैन आइदर बी sort of a big stature or charismatic, difficult to reach, or you can be common man's doctor कि ये बेचारा काम काज छोड़ के आया है, काउंटर बंद हुआ उसके 2 मिनट बाद जो पहुंचा,
तो इसलिए जब मैं हेड था ऑर्थोपेडिक्स में, मैंने कभी भी नंबर ऑफ ओपीडी रजिस्ट्रेशंस को लिमिट नहीं किया। मैंने कहा जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा उसको देखना उसको देखा जाएगा, चाहे वो कितना भी लेट हो। कुछ भी नहीं है तो उसको कम से कम यही एडवाइस दे दे कि देखो ऐसा है, आपको डिटेल में बाद में देख लेंगे, आपकी ये प्रॉब्लम लग रही है, आप ये एक्सरे करवा लो, कम से कम आपका आज का विजिट वेस्ट नहीं हो जाए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम एक्सरे के साथ आपको हम देख लेंगे। सर विच पेशेंट्स डू यू लाइक लाइक डू यू वांट योर पेशेंट्स टू डू सम होमवर्क, अपने एक्सरेज अरेंज करके लाएं, या आ जाएं एंड यू एंड योर टीम विल मैनेज इट? डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर पेशेंट्स नहीं, एडवाइस फॉर पेशेंट्स बिफोर दे सी यू? हाँ बिल्कुल, वो तो आप देखिए ऐसा है, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम एंड एफिशिएंसी एवरीवेयर, इफ यू आर पॉपुलर यू विल बी क्राउडेड। ऐसे में अगर कोई पेशेंट आपके सामने आके बोलता है मेरे पास वो आपको मैसेज दिखाना मेरे पिछले डॉक्टर ने क्या बोला था, एंड ही कीप्स ऑन स्क्रोलिंग थ्रू द फोन, तो बड़ा पोलाइटली मेरी टीम के लोग ही बोल देते हैं कि आप ऐसा करें, आप आ जाएं, बाहर आ जाएं, बैठ जाएं, एक बार आपको जब मिल जाएगा तो हम अंदर आके दोबारा कर लेंगे। लेकिन उनके अपने वक्त के लिए और हमारे वक्त के लिए अच्छा ये है कि अगर उनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लंबा केस है तो कई पेशेंट ऐसा करते हैं कि कागज़ पे लिख के ले आते हैं, जिससे ये इजी हो जाता है, और वो एक्सरे अपने ऑर्डर में ले आते हैं, जिससे वक्त बचता है उनका भी और डॉक्टर का भी। टाइम कैसे डिसाइड करते हो सर पर पेशेंट इन ओपीडी? लाइक विच पेशेंट विल गेट 1 hour ऑफ यू? वैसे तो आई डाउट, बट और विच पेशेंट यू विल The patients who are complicated, who have suffered a lot, where treatment is likely to be fraught with complication risk, they need more counseling. प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार ट्रिवियल इश्यूज़ वाले और नॉन सीरियस बीमारी वाले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके बहुत ज़्यादा देर समय लेना चाहते हैं, और वो पेशेंट, ऐसे पेशेंट एम्स में भी आते थे, यहाँ भी आते हैं। पर मुझे ये लगता है कि किसी पेशेंट को अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री है और उसकी सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड और उसकी सर्जरी में बहुत सारे रिस्क्स हैं, तो ऐसे पेशेंट को डेफिनेटली ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन सर, हम गोल्ड इम्प्लांट की बात कर रहे थे, और हाँ एक ये वीडियोस बहुत चल रहे हैं सर जिसमें कायरोप्रैक्टर्स होते हैं या क्वैक्स होते हैं जो स्पाइन क्रैक करते हैं, आवाज़ें आती हैं एंड दे से रिलीफ मिल गया है। तो सर ये तो एक्चुअली एडवर्टाइजिंग है, अनफॉर्चुनेटली इस तरह की का मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। अभी भी इस देश में लोग पहलवान से मालिश करवाते हैं चोट लगने पे, जबकि हम कई बार ऐसा देखते हैं कि पेशेंट्स को बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी हेल्थ अवेयरनेस का कल्चर आ रहा है, लेकिन हेल्थ पे खर्चा करने का कल्चर नहीं आया है। तो अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी तो आप पहलवान के पास तो नहीं जाओगे। तो ये कल्चर है हेल्थ इंश्योरेंस करने का, हेल्थ पे खर्चा करने का, जब ये आएगा तभी लोग जो है ऐसी चीज़ों पे बिलीव करना बंद कर देंगे। थिंक आपको लगता है सर गवर्नमेंट डॉक्टर्स आर रूड एज कम्पेयर टू प्राइवेट डॉक्टर्स? आई थिंक रूडनेस इज़ वर्च्यू विच इज़ पर्सनल। प्राइवेट में मैंने देखा है लोग तब तक बहुत पोलाइट रहते हैं जब तक प्रैक्टिस चल नहीं जाती है। शो मी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल orthopedic surgeon who's polite and respectful to the patient, and to me he is a real professional, because what happens is आप जब बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, आपके पास बहुत भीड़ आने लग जाती है, तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट क्वालिटी टाइम with yourself and your family, and then you get impatient when the patient is just going on and all, and many of these people, they end up being rude and they justify saying that the patient deserves that kind of thing. But I personally think कि गवर्नमेंट में भी बहुत पोलाइटली और अच्छे से बात करने वाले लोग हैं, और प्राइवेट में भी रूडली बात करने वाले लोग हैं। डिपेंड ये करता है कि आपका पर्सनल कैरेक्टर कैसा है, और दूसरे जब आप प्राइवेट में होते हैं तो शुरू में आप पोलाइट रहते हैं ज़रूर। अब सर लेकिन पेशेंट कहीं भी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर इज़ द वर्ड मीन्स हीलर ना, दे आर गोइंग टू अ हीलर। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास ज़्यादा भीड़ है ये जस्टिफिकेशन है आपकी पेशेंट के साथ रूड होने के लिए। दैट्स नॉट अ जस्टिफिकेशन, जस्ट एज बीइंग ओवरवर्क्ड इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मेडिकल एरर और बॉचिंग अप अ सर्जरी और बॉचिंग अप द ट्रीटमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत काम करते हैं इसलिए हमारा काम गलत हो जाए तो वो ठीक है। Sir, coming to the final part of this episode, just I need one word or one sentence answers from you for the following question. One advice to a person who is doing MBBS.
So this is a bad profession for making money. And if you are aram person, don't go on after MBBS. Change your profession. One person who is doing a residency, PG in medicine. Or surgery. Forget the limited hours. For your own self, work as hard as you can. This is an opportunity which will not come back. Right. One word for the people who are young and healthy now as a preventive medicine. Preserve your health, work-life balance, take out time for physical fitness and recreation and relaxation. One word for obese patients, obese people who are not patients yet. It's coming. Yes. Patients with osteoporosis. Save your bones, otherwise it will just fall down like a house of cards. And patients with knee pain. Intervene in time before it's too late. So change your lifestyle now, lose weight, do exercises if you want your knees to last longer. And one precaution one should follow while doing yoga or gym fitness. So your body is your best guide. If your body tells you something is hurting, don't persist with it. And don't overdo anything, and don't do any fitness things without adequate warm-up and without supervision and without training. Perfect. Thank you, sir. And minimum whey proteins and supplements. Yes. Thank you so much, sir. Thank you. I think हर किसी को from students, young aspirants, patients, हम लोगों के लिए सबके लिए बहुत ही knowledgeable रहा, बहुत enlightening रहा. Thank you for sharing all the details. So guys, ये था आज का हमारा podcast with Professor Dr. राजेश मल्होत्रा. सर का नाम और ऑर्थोपेडिक्स जैसा कि आप लोग जानते हैं और समझ ही गए होंगे सिनोनिम्स हैं. हमारे लिए सर की एक एक बोली हुई बात एक लर्निंग एक्सपीरियंस है. सो आई होप आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा. इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन. इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. आपके जो मेडिकोज या नॉन मेडिको दोस्त हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके साथ इसको डिस्कस करिए. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कुछ आप सर से पूछना चाहते हैं, कुछ हमारी टीम से पूछना चाहते हैं, यू कुड ऑलवेज राइट अस, या आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. एंड इफ़ यू थिंक यू बिलोंग हेयर विद मी ऑन दिस पॉडकास्ट, आपने कुछ अलग से हटके किया है या आपने अपनी फील्ड में एक्सेल किया है एज अ डॉक्टर, तो प्लीज़ यू आर वेलकम, राइट टू अस. थैंक यू.